Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is pyramid of energy. तो इससे पहले आपको याद होगा कि जो पिछले लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रिगार्डिंग द pyramid of number एंड pyramid of the biomass. तो जैसे कि आपने देखा कि जो pyramid of number है, it can be मतलब upright, inverted, sometimes it can be spiral shape. But on the other hand, the pyramid of biomass can be upright as well as can be inverted. जैसे कि हमने देखा कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में या हमने देखा पॉन्ड इकोसिस्टम में pyramid of biomass होता है inverted. तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं that is regarding the pyramid of energy. So far as this pyramid of energy is concerned, basically pyramid of energy, it actually refers to the graphic representation of amount of accumulated energy per unit area at the successive tropic levels. So amount of accumulated energy, accumulated energy per unit area at the successive tropic levels of a food chain. Here, the length of bar is directly proportional to the amount of energy that is available at that very level. Amount of energy at that tropic level. Always the energy is maximum at the producer level and it gets decreased when we proceed towards the successive or towards the upper levels of a food chain. तो इसकी मतलब जो amount of energy वो maximum होता है, वो ज़्यादा होती है कहाँ पे? At the producer level पे maximum होती है. And at the successive levels, that is at the herbivore level, then primary carnivore, then secondary carnivore, tertiary carnivore, ये एनर्जी फिर रिड्यूस होती है, कम होते हैं, डिक्रीज होती है. तो अगर हम देखेंगे कि on the global scale only 0.2% of solar energy is picked up by the producers. Only 0.2% of solar energy, यानी कि सोलर एनर्जी का सिर्फ 0.2% ही पिकअप करते हैं कौन? प्रोड्यूसर लेवल. फिर क्या होता है? फिर यही एनर्जी जो प्रोड्यूसर लेवल से फिर ये मतलब एनर्जी है, इट गेट्स देन पास्ड टू द herbivore level, लेकिन इसका only 10% of energy is transferred from producer level to the herbivore level. This is sometimes referred to the 10% law which was proposed by Landman. तो यहाँ पे 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है from producer level to herbivore level. तो जो रेस्ट ऑफ एनर्जी होती है, फूड एनर्जी होती है, that is lost as during the excretion, digestion, तो उस दौरान ये लॉस होते हैं. सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, तो उसमें भी एनर्जी कंज्यूम होती है. इस तरह फिर हर्बिवोर से प्राइमरी कार्निवोर्स तक जो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, तो दैट will be only 10% of energy from the herbivores will be transferred, or this herbivore food energy will be transferred to producer level, and accordingly then 10% from producer level to primary carnivore, then primary carnivores to secondary carnivores. Primary carnivores से सिर्फ 10% ही यहाँ तक ट्रांसफर हो जाएगा. इस तरह secondary carnivores से tertiary carnivore जो है यहाँ तक भी 10% of energy that will be transferred. The rest will be lost during excretion, digestion, and some part is used during respiration as well. तो इस तरह यहाँ पे ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है across the different tropical levels. अगर हम देखेंगे, लेकिन जब हम कहते हैं कि
0.2% of the solar radiation or solar energy is trapped or peaked of the producer level, but this varies among the different producers. अगर हम बात करेंगे एक मतलब जो हमारे फॉरेस्टर्स होता है, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, कितना ये सोलर एनर्जी ट्रैप करते हैं या पिकअप करते हैं, सिर्फ ये पिकअप करते हैं 0.81%। मतलब जो फॉरेस्टर्स होते हैं, foresters they are also producers, but they can only trap or they only pick up only 0.8% of the solar radiation। इस तरह अगर हम देखेंगे जो मतलब grasslands होते हैं, they have the tendency, they have the efficiency that they can pick up or trap 1.15% मतलब of solar radiation। यानी कि जो grasslands होते हैं इनमें इतनी एफिशिएंसी होते हैं, they can trap up to 1.15% of the solar radiation। तो इसी तरह अगर हम बात करेंगे in case of the modern plant, जो crops है modern plant, they have a tendency they can trap 5% जो modern crops होते हैं। तो इसी तरह शुगर केन जो है इसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी होते हैं, it can trap 10 to 12% of solar energy, यानी कि शुगर केन। That means this efficiency of trapping the solar radiation it varies, it is variable or it varies in different producers. So like why we have actually we saw in these various producers that they have a different tendency to trap this solar radiation। तो इस तरह तो फिर आपने देखा कि जब ये 10% ट्रैप होके हर्बिवोर से फिर प्रोड्यूसर्स, इस तरह प्रोड्यूसर्स का 10% फिर सेकेंडरी, इसी तरह टर्शियरी, तो इस तरह ये एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर होती है। तो अगर हम देखेंगे कि इस पिरामिड ऑफ एनर्जी के अंदर जो सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली देयर इज अ डिक्रीज ऑफ एनर्जी, यहाँ पे डिक्रीज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, decrease of energy takes place or it is observed across the various levels। That means energy is more at the producer level, it is less at the herbivore level, and it gets further decreased towards the other carnivore level। तो यहाँ पे चूंकि डिक्रीज हो गए, जो यहाँ पे पैरामिड होगा that will be always upright। वो पैरामिड ऑफ एनर्जी जो है, पैरामिड ऑफ एनर्जी it is always upright। This is very important point। अगर हम देखेंगे कि किसी वक्त इंटरेस्ट में भी पूछा जाता है कि which type of ecological pyramid is upright, यहाँ पे आपका बेस्ट जो प्रॉपर ऑप्शन होगा, तो एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा दैट इज pyramid of energy, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है। तो अगर हम देखेंगे इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे। सपोज यहाँ पे सन है, यहाँ से जो रेडिएशन आती है, सपोज सन गिव्स सम जमीन तक यहाँ तक सपोज 1 million joules of energy is actually coming from the sun। लेकिन फिर क्या होता है, जो यहाँ पे प्रोड्यूसर लेवल होता है वो इसका सिर्फ 1% ट्रैप कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो मतलब जो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी एनर्जी, सोलर एनर्जी, दैट विल बी ओनली 10,000 जूल्स। कहाँ पे? प्रोड्यूसर लेवल पे, ठीक। फिर प्रोड्यूसर लेवल से हर्बिवोर लेवल तक सिर्फ इसका 10% ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसका यहाँ पे 1000 जूल्स आएगा। The rest will be lost, that will get actually lost during devouring, digestion of the food, or that is lost during excretion, ठीक है ना। तो इसको हम कहेंगे हर्बिवोर लेवल। फिर हर्बिवोर लेवल से प्राइमरी कार्निवोर लेवल तक इसका 10% वो कितना आएगा? 100 जूल्स। तो फिर हो गई प्राइमरी कार्निवोर्स। फिर प्राइमरी कार्निवोर्स से सेकेंडरी कार्निवोर्स जो है वहां तक सिर्फ इसका 10% ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज 10 जूल्स ऑफ एनर्जी ऑफ द प्रोड्यूसर लेवल
primary cardinal level will get transferred to the secondary cardinal, and ultimately there will be only one, यानी इसका 10% 1 joule will get transferred in case of the tertiary cardinal post. यहाँ पे ये clearly this actually makes the pyramid of energy, pyramid of energy. वो it is always upright, ये upright होता है. क्यों upright होता है? क्योंकि यहाँ पे at the successive levels the energy is getting decrease. जब हम मतलब लेवल से ऊपर हायर लेवल की तरफ देखते हैं यहाँ पे इस पैरामिड में, यहाँ पे एनर्जी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते हैं. दिस इज व्हाई इट गिव्स द शेप ऑफ द अपराइट पैरामिड. तो इस तरह हमने तीनों टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पैरामिड्स डिस्कस किए. पहले पैरामिड ऑफ नंबर्स के बाद पैरामिड ऑफ बायोमास एंड टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पैरामिड ऑफ एनर्जी. लेकिन इन पैरामिड्स के अंदर कुछ drawbacks भी हैं. Let us try to understand what are the biggest drawbacks that are found in case of the pyramids of this ecological pyramid. जो पहला drawback है, these pyramids they do not include the decomposers. देखो यहाँ पे decomposers को include नहीं किया. जो भी pyramid हमने देखा कि उसमें हमने decomposers को कभी नहीं मतलब टच किया, हमने उसके मतलब उसके बारे में यहाँ पे नहीं बात की. तो यहाँ पे डिकम्पोजर्स को इंक्लूड नहीं किया, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है. क्योंकि डिकम्पोजर्स के थ्रू बल्क अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड थ्रू द डिकम्पोजर्स एज वेल. तो ये कंपोनेंट यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है. इस तरह जो इसका दूसरा मतलब ड्रॉबैक है, इट ओनली कंसीडर्स द सैंपल फूड चेन. यहाँ पे जितने भी हमने पैरामीटर्स पढ़ी, हमने सैंपल फूड चेन्स की बात की. तो क्योंकि यहाँ पे इन इकोसिस्टम्स या इन नेचर देयर आर प्रेजेंट फूड वेब्स, क्योंकि बहुत सारी फूड चेन्स दे आर इंटरकनेक्टेड, दे आर इंटरज्वाइंड, दे आर मतलब देयर इज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स व्हिच फॉर्म द फूड वेब. तो फूड वेब तो यहाँ पे नहीं कंसीडर होता, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है. इस तरह यहाँ पे देयर इज नो रेमेडी फॉर द मल्टी लेवल ऑर्गेनिज्म. मल्टी लेवल अगर हम स्पैरो की बात करते हैं, देखो स्पैरो इट हैज अ टू मूड्स. समटाइम्स it takes the grains, that means at that time it is the herbivore, but at the same time it can also eat the insects. At that time it becomes the carnivore. तो यहाँ पे इन मल्टी लेवल ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो बात नहीं की गई है. तो इसी तरह अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे they do not depict the seasonal variation, मतलब सीजनली जो वेरिएशंस होती है या डायरेनल वेरिएशंस होती है, तो इन एन इकोसिस्टम या इन फूड चेन वो भी यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया है. तो दैट वाज रिगार्डिंग द ड्रॉबैक्स ऑफ द these ecological pyramids. And now there is one term related with this pyramid of energy, that is emerge. What is meant by that term emerge? तो देखो emerge is the amount of energy that is available, the amount of energy that is available at the lower level, and some part of it gets transferred or gets accumulated in the higher level. जो इसकी following level होगी तो उसमें मतलब ट्रांसफर होगा. यानी कि लोअर लेवल पे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो अवेलेबल है, तो जिसका कुछ हिस्सा ट्रांसफर होता है टू द हायर लेवल. तो जो लोअर लेवल पे अवेलेबल है उसी को हम कहते हैं इमर्ज. फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे प्रोड्यूसर लेवल पे जो है ना एनर्जी अवेलेबल है, इट इज 10,000 जूल. जो फिर हर्बिवोर लेवल है, यहाँ फिर जो यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगी दैट इज ओनली 1000 जूल. तो यहाँ पे अगर हम इमर्ज ऑफ फूड देखेंगे, इमर्ज ऑफ फूड दैट इज ओनली दैट विल बी 10,000 जूल्स ऑफ एनर्जी. तो इसको हम कहते हैं इमर्ज. ठीक है, तो दैट इज ऑल रिगार्डिंग दिस इकोलॉजिकल पैरामीटर्स. तो टुडे वी विल कंक्लूड हियर. फी अमानिल्लाह.